Good morning, everyone. Uh, Today we are gathered here to celebrate International Women's Day, and I would like to quote one mantra with which we'll start the day. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Sanstita Namastatsai 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 Namo Namaha. Friends, this modern society talks of empowering women, but as per my view, the concept of Shakti reminds us that it is the power which has always been feminine. So maybe this modern society is just rediscovering an ancient truth only. With this, I would like to call our dignitaries today, Mr. Dr. Karan Kakkar ji on stage, and along with him, CA Anita Agarwal ji. Please. Senior Anita Agarwal ji. I would like to call CA Preeti Halanji to facilitate Sir Karan Kakkar ji. Mr. Karan Kakkar firmly believes that the two most important aspects of humanity, our health and happiness, have to be in our control. By mastering the food we eat and the thoughts and emotion we live with, we can create a happy, healthy and disease-free life. Mr. Kakkar is an internationally renowned nutrigenomics and disease reversal expert and a TEDx speaker. He has helped over 10,000 plus patients over a decade, helping them reverse every kind of lifestyle or chronic disease. He has extensive research and experience in the field of nutrigenomics, stress psychology, neuroimmunology, and epigenetics. He personally consults celebrities like Mr. Mukesh and Mrs. Neeta Ambani, Mr. Bajaj, the automobile tycoon of India, the Kapoor family, the Birla family, and many more in the industry. Mr. Kakkar is passionate about spreading awareness with respect to the role of nutrition and our thoughts and emotions in order to create a life that is filled with health and happiness. With this, I would request Mr. Kakkar to please proceed with the session. Good morning. All right. Good morning. Can you all hear me? आपको आवाज आ रहा है? Clear? Very nice. So before we begin, can I request all of you to please stand? I want all of you to use this space as much as you can. You understand? All you're supposed to do is listen to my voice and just follow the instructions. Clear? And use this space as much as you can. Clear? So when I say walk, all of you are supposed to walk. You understand? When I say walk, all of you are supposed to walk and use this entire space. When I say stop, you are supposed to stop wherever you are. You just stand there. Clear? Can we do this? Easy? Very nice. So please walk. Stop. Walk. Stop. So nice. Now listen. When I say walk, you will stop. When I say stop, you will walk. Clear? जब हम walk बोलेंगे आपको stop करना है.
और जब स्टॉप बोलेंगे आपको वॉक करना है, क्लियर। फिर जब हम बोलेंगे नेम, तब आपको आपका नाम एक बार जोर से चिल्लाना है। कैन यू डू दैट? नेम। एंड व्हेन आई से क्लैप, आप सबको एक बार जोर से क्लैप करना है, वंस। कैन यू डू दैट? क्लैप। सो व्हेन आई से वॉक, यू स्टॉप। व्हेन आई से स्टॉप, यू वॉक। व्हेन आई से क्लैप, आप लोग सब एक बार जोर से क्लैप करेंगे, एंड चल रहे तो चलते रहेंगे। एंड व्हेन आई से नेम, आप लोग सब जोर से एक बार आपका नाम बोलेंगे। कैन वी डू दिस? इजी? वेरी नाइस। चलिए, वॉक, स्टॉप, स्टॉप, walk, very nice, stop, clap, stop, name, stop, very nice. Now just hold on 1 second. So walk means stop, stop means walk. फिर जब हम बोलेंगे नेम, तब आपको क्लैप करना है, और जब हम बोलेंगे क्लैप, तब आपको एक बार नेम जोर से बोलना है। इजी? कर सकते हैं? वेरी नाइस। ओके, चलिए, वॉक, स्टॉप, नेम, स्टॉप, वॉक, क्लैप, स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, नेम। Very nice. Now listen. So walk means stop, stop means name, clap means नाम जोर से बोलना है, and name means आपको clap करना है. Clear? Now let's add 2 more things. Okay? No, you pay attention. अच्छे से होगा. So we'll add 2 more things. So when I say hey, तब आपको जोर से hey चिल्लाना है एक बार. Can you do that? Hey. And when I say jump, तब आपको थोड़ा सा jump करना है. And people who can't jump, आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, and then you keep walking. Understand? So now listen. When I say walk, you will stop. When I say stop, you will walk. Clear? When I say clap, you will say your name loudly once. When I say name, you will clap once. When I say hey, you will shout hey once. When I say jump, you will just little bit jump. Can you do that? Very nice. So good. So now, chaliye, walk. Very nice. Stop. Hey. Stop. Name. Stop. Clap. Stop. Jump. Hey. Walk. Very nice. So now last wala we will interchange. So walk means stop. Stop means walk. Okay. Clap means आपको नाम जोर से बोलना है. When I say name, तब आपको clap एक बार अच्छे से करना है. And when I say hey, तब आप क्या करेंगे? Jump करेंगे. And when I say jump, तब आप क्या करेंगे? Hey बोलेंगे. Clear? Very nice. Do it nicely. चलिए. Stop. Hey. Lot of people are jumping and clapping. Okay. कोई बात नहीं. चलिए. Focus. Stop. Name. Stop. Dance. There is no dance. Very nice. I was just watching what are you doing. Okay, chaliye, stop. Clap. Very good, stop. Hey. Stop. Jump. Clap. Name. Very nice. Thank you so much. Please have your seats. So now I know that all of you are wide awake. भैया इसको तो आवाज बढ़ाइए ना. So I know that all of you are wide awake and not sleeping now. So अभी आप लोग हमारा बात ध्यान से सुनेंगे. And at the back, can you hear me? Yes? Very nice. So now, next 30 minutes, I really want you to pay attention and listen to me very nicely. If you don't understand anything, you can please ask me 10 questions, okay? But I really want you to understand something. So, I think one of the most important thing for all of us
is that when we are in our 60s and 70s and 80s, we should be fit, fine and healthy. Yes or no? इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है कि जब हम 60, 70, 80 साल के होए, we should be fit, fine, healthy and happy. And अगर हमको 50, 60, 70 साल में fit रहना है, happy रहना है, healthy रहना है, the only thing that is going to help us is our habits and our lifestyle. You understand? हमको किसी को भी कोई डाइट करने का जरूरत नहीं है, हमारी हैबिट, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए. मेक सेंस? यस? कैन वी हैव द डोर्स क्लोज प्लीज? So the only thing that is really going to help us to be fit, fine, healthy in our 50s and 60s and 70s is our habits, our lifestyle. वही हमको काम आने वाला है. So सुबह से लेके रात तक जो भी हमारे अंदर जाता है वो अंदर जाके या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा. सुबह से लेके रात तक जो भी हमारे अंदर जाता है वो अंदर जाके या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा. दो चीज अंदर जाता है, एक है खाना पीना और दूसरे हमारे विचार. अंडरस्टैंड? सो इफ यू मास्टर द फूड दैट यू आर ईटिंग एंड योर थॉट्स एंड इमोशन, तो पहले से बेटर होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? नाउ दिन में कितनी बार खाते हैं हम? 3 बार, 4 बार, 5 बार. सोचते कितने हम? 60 to 70,000 thought every single day. Each thought has an emotion. वो इमोशन हमारे बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल वो भावनाओं को सुनता है. यू अंडरस्टैंड? एंड दो ही ऑप्शन है, या तो आप ओवर थिंकिंग, वरिंग, फियर, गिल्ट, रिग्रेट, एंगर उसमें जिएंगे, या हम ग्रेटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, लव उसमें जिएंगे. सुबह हम उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, पूरे दिन कौन सी भावनाओं में जीते हैं, इट विल डिसाइड आवर हेल्थ एंड आवर बायोलॉजी, बिकॉज हमारे बॉडी के हर एक सेल वो इमोशंस को सुनता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी क्लियर? कैन यू लुक इनटू द आईज ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड कैन यू एक्सप्लेन आपको अभी तक क्या समझ में आया? चलिए, कम ऑन, प्लीज एक्सप्लेन आपको अभी तक क्या समझ में आया. कम ऑन, प्लीज डू दैट. वेरी नाइस. सुबह से लेकर रात तक दो चीज अंदर जाता है, एक है खाना पीना और दूसरे हमारे विचार. सो इफ यू मास्टर द फूड दैट यू आर ईटिंग एंड आवर थॉट्स एंड इमोशन, तो पहले से बेटर होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? नाउ आज हम आपको 10 चीज बताएंगे, 10 थिंग्स दैट आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्रैक्टिस इन योर लाइफ. क्लियर? एंड अगर आप ये 10 चीज आपकी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उससे आपका हेल्थ, हैप्पीनेस बेटर होना चाहिए. यस और नो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमको डाइट नहीं करने का है. यू अंडरस्टैंड? हमको हमारा हैबिट्स और लाइफस्टाइल अच्छा करना है. यू अंडरस्टैंड? एंड इमोशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट थिंग दैट आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस, आपके जितने क्वेश्चंस आई विल आंसर, डोंट वरी, बट लेट अस अंडरस्टैंड दीस 10 थिंग्स. नंबर 1 इज having 2 to 3 fruits in a day. Easy? हम आपको 10 सिंपल चीज बताएंगे, ये हम सब कर सकते हैं, जिससे हमारा हेल्थ, हमारा इम्यूनिटी, हमारा हैप्पीनेस बढ़ना ही चाहिए. सो दिन में 2 से 3 फ्रूट खाना इज नो रॉकेट साइंस. यस और नो? हाँ, बट सीजनल हमको ध्यान देना है, नेचुरल हमको ध्यान देना है. पपीता, बेदाना, अमरूद, अभी सीजन का खरबूजा आता है. यू अंडरस्टैंड? खरबूजा, मस्क मेलन, ब्रिलियंट फॉर बीपी, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, वेरी गुड फॉर गट. सो दिन में 2 से 3 फ्रूट खाना है. फ्रूट आइडियली हमको एम्प्टी स्टमक खाने का है. सो खाने के बाद रात को नहीं खाना है. एम्प्टी स्टमक फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ. तो आप सुबह खाएंगे 8, साढ़े 8 बजे, या आप शाम को 4:30, 5 बजे एक बार खाएंगे. दिन में 2 बार आप फ्रूट खाएंगे, बट फ्रूट एम्प्टी स्टमक, और दिन में 2 से 3 फ्रूट खाना है. कैन वी डू दैट? यस? इजी? वेरी नाइस. सेकेंड दैट वी ऑल शुड इनकॉर्पोरेट कि लंच एंड डिनर जो है वो हमारा घर का सिंपल खाना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल. क्लियर? बट लंच एंड डिनर के पहले कैन वी हैव अ बोल ऑफ सैलेड? खा सकते हैं, खीरा, गाजर, बीटरूट, जो आपको पसंद. यस? सो नंबर 1, दिन में हमको 2 से 3 फ्रूट खाना है. क्लियर? सेकेंड, लंच एंड डिनर के पहले वी विल हैव अ बोल ऑफ सैलेड. अब इसमें जो आपको पसंद, अभी जैसे विंटर सीजन गया, सो विंटर सीजन में हम काफ़ी जन को रेड, येलो कैप्सिकम, ब्रोकली, लाल पत्ता गोभी ये सब बताते थे. अभी विंटर सीजन चला गया, वो सब अच्छा मिलेगा नहीं, तो गाजर, बीटरूट, क्यूकम्बर, जो आपको खा सकते हैं. बट लंच और डिनर के पहले हमको थोड़ा सैलेड खाना है. कैन वी डू दैट?
कर सकते हैं? यू अंडरस्टैंड? सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई भी खाना इस दुनिया में 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 एनिमल फूड, नंबर 2 पैकेट फूड, नंबर 3 प्लांट फूड. क्या बोला मैंने? नंबर 1 एनिमल फूड, नंबर 2 पैकेट फूड, नंबर 3 प्लांट फूड. एनिमल फूड मतलब नॉनवेज एंड मिल्क, मिल्क इज एनिमल फैट, सो नॉनवेज एंड मिल्क एनिमल में आता है. पैकेट फूड मतलब भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब पैकेट फूड में. एंड प्लांट फूड इज फ्रूट, वेजिटेबल, राजमा, छोला, स्प्राउट्स, ऑल ऑफ दैट. इस तीनों के बाहर कुछ होता है, या तो एनिमल फूड या पैकेट फूड या फिर प्लांट फूड, और तो कुछ नहीं. यस, यू नो दिस इज व्हाई आई लाइक टॉकिंग टू ऑल वुमेन. यू नो मैं लास्ट वीक अहमदाबाद में था फॉर अ लेक्चर, 400-500 आदमी का लेक्चर था, एंड उसमें मैंने ये बोला कि कोई भी खाना या तो रोटरी या कोई तो ग्रुप था, रोटरी था, तो बहुत सारे मेन थे उसमें. सो दिस वन जेंटलमैन आस्क्ड मी कि सर इसमें ड्रिंक्स कहाँ पे आते हैं? यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई आई लाइक टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. सो एनिमल फूड, पैकेट फूड एंड प्लांट फूड. ओके, इस तीनों में सबसे बेटर कौन सा है? प्लांट फूड. वी ऑल अंडरस्टैंड कि अगर हमको अच्छा रहना है, गट अच्छा करना है, इम्यूनिटी अच्छा करना है, हेल्थ अच्छा करना है, तो मोर नेचुरल, मोर सीजनल, मोर प्लांट बेस्ड खाना चाहिए. एप्पल को काट के बाहर रखते काला हो जाता है, भुजिया, ब्रेड, बिस्किट को काट के बाहर रखते तो काला नहीं होता है. वाई? बिकॉज एप्पल हैज लाइफ, उसमें लिविंग सेल है, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है. तो हमारे अंदर जितना लिविंग फूड जाएगा वो बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है. यू अंडरस्टैंड? सो दैट कॉन्सेप्ट, दैट लॉजिक, दिन में 2 से 3 फ्रूट खाना चाहिए, लंच और डिनर विच इज नॉर्मल घर का खाना, बट उसके पहले हम बोल ऑफ सैलेड खाएंगे. कैन वी डू दैट? इजी अभी तक? वेरी नाइस. नंबर 3 ड्रम स्टिक. समझते हैं आप ड्रम स्टिक? क्या होता है ड्रम स्टिक? सांबर में होता है ड्रम स्टिक. दुनिया में नंबर 1 फॉर इम्यूनिटी, फॉर गट, लॉट ऑफ कैल्शियम, फॉर बोन्स, फॉर हार्मोनल इश्यूज, फॉर गट हेल्थ. वेरी वेरी नाइस. सो हम लोग घर में क्या करते हैं, 1 किलो डाटा घर ले जाते हैं, उंगली के साइज का काट के फ्रिज में रख देते हैं, रोज रोज नहीं काटने का है. जब आप लंच एंड डिनर करेंगे उसके पहले 5 to 6 पीसेस फिंगर साइज बॉइल्ड ड्रम स्टिक, एक सीटी ला के बॉईल करना है और बस उसको चूसना है, ऊपर का फेंक देना है, चूसना, ऊपर का फेंक देना है. 5 सेकंड लगता है. यू अंडरस्टैंड? बट कैन वी ऑल हैव ड्रम स्टिक एवरी डे? यस और नो? यू अंडरस्टैंड? नाउ हैविंग ड्रम स्टिक एवरी डे, ये कोई डाइट है क्या? नहीं, ये एक हैबिट है, ये एक लाइफस्टाइल है. यू अंडरस्टैंड? सो नंबर 1 2 to 3 फ्रूट्स इन अ डे, जो आपको पसंद हो, सीजनल फ्रूट खाना है, जूस नहीं पीना है. यू अंडरस्टैंड? नंबर 2 लंच और डिनर के पहले हमको सैलेड खाना है, क्यूकम्बर, बीट, कैरेट, जो भी आपको पसंद है. नंबर 3 लंच और डिनर के पहले 5 to 6 पीसेस फिंगर साइज ड्रम स्टिक. अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो आप कोई सूप में भी डाल सकते हैं. अगर डिनर के पहले कोई ग्रीन सूप पीते हैं, परफेक्ट. सो ग्रीन सूप पीना है, कच्चा पपीता, लौकी, समथिंग, उसमें आप ड्रम स्टिक बॉईल करके उसका अंदर का पल्प डाल देना है. यू अंडरस्टैंड? यस, जस्ट इमीडिएटली. सो आप खाना खाने बैठेंगे, पहले आप सैलेड खाएंगे और उसके बाद नॉर्मल खाना खाएंगे. सो सैलेड, ड्रम स्टिक एंड नॉर्मल लंच. यू अंडरस्टैंड? एंड अगर आप सूप पी रहे हैं तो सूप पीना है, ड्रम स्टिक डालेंगे और उसके बाद तुरंत आप डिनर करेंगे. यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इजी 3 पॉइंट्स? या कम अगेन? या नो प्रॉब्लम. या सूप में कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो फार सो गुड, वेरी नाइस. नंबर 4 फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक खाना चाहिए. तो सुबह एक बार आप खाएंगे, मे बी यू कैन हैव 2 फ्रूट्स, पपीता, अनार, अमरूद, एप्पल, कोई भी 2. एंड शाम को 5 बजे के आसपास यू कैन हैव एनी 1 फ्रूट. सो दिन में 2 से 3 फ्रूट जाना चाहिए, बट एम्प्टी स्टमक, नॉट विथ फूड और नॉट आफ्टर फूड. यस, हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग टू योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हमको 5 बजे शाम को संतरा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम. बट अगर आपको लगता है कि हम संतरा खाते हैं सुबह सुबह और हमको एसिडिटी होता है, तो यू शुड अवॉइड. अंडरस्टैंड? लिसनिंग टू योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो कौन से 3 पॉइंट हो गए अभी तक? एक माइक है आपके पास? माइक दीजिए. हाँ, क्लियर हो गया. नंबर 4 लेट डिनर इज एनीवेज नॉट नाइस. क्लियर? सो हमको 12 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए. क्या करना चाहिए? 12 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग. मतलब आप 8 साढ़े 8 बजे डिनर खत्म करें एंड सुबह हम 8 बजे चालू करें. सो 12 आवर्स व्हेन यू आर नॉट ईटिंग, योर गट इज बीइंग रेस्टेड, योर बॉडी इज मोर फोकसिंग ऑन हीलिंग एंड क्लीनिंग रादर देन डाइजेशन. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 12 घंटा इंटरमिटेंट सब कर सकते हैं? यस और नो? नाउ पानी पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ कोई भी इंसान को, हम आपको इसका साइंस बताते हैं, कोई भी इंसान को
जब बुखार होता है, भूख ज्यादा लगता है कम लगता है? कम लगता है। बुखार कब होता है? जब बाहर का इंफेक्शन बॉडी में आता है, उस इंफेक्शन को मारने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, दैट इज नोन एज फीवर। अंडरस्टैंड? सो जब फीवर होता है, बॉडी को डाइजेशन नहीं करने का है, बॉडी को साफ सफाई करना है, जो इन्फेक्शन बॉडी में आया है उसको बाहर फेंकना है। सो बॉडी अपने आप खाने का रुचि कम कर देता है, हमको खाने का मन नहीं करता है। सो विच मीन्स दैट हमारी बॉडी में या तो डाइजेशन होगा या साफ सफाई होगा। यू अंडरस्टैंड? बट इफ यू फिनिश योर डिनर बाय 7:38 एंड उसके बाद 12 घंटा अगर हम ना खाओ, यू स्टार्ट अगेन एट 8 o'clock, सो द 12 hours दैट यू आर नॉट ईटिंग, योर बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग, योर बॉडी इज बिजी इन हीलिंग एंड क्लीनिंग योर बॉडी। यस और नो? बट इसकी जगह पे अगर हम रात को 11 बजे कुछ मंच करेंगे, खाएंगे, सो योर बॉडी विल स्टॉप हीलिंग एंड क्लीनिंग एंड गो बैक टू डाइजेस्टिंग फूड। यस और नो? एंड जनरली हम जो रात को 11 बजे खाते हैं वो अगड़म बगड़ में ही खाते हैं। यस और नो? यू अंडरस्टैंड? सो नंबर 1, दिन में 2 से 3 फ्रूट्स खाने गए। नंबर 2, लंच डिनर के पहले एक बोल सैलेड खाएंगे। लंच एंड डिनर इज नॉर्मल घर का खाना। नंबर 3 इज लंच एंड डिनर के पहले एटलीस्ट एक बार या 2 बार हम दिन में ड्रमस्टिक खाएंगे। यू अंडरस्टैंड? नंबर 4 इज 12 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग। 8 साढ़े 8 खत्म, सुबह हम चालू करेंगे 8:30, 12 hour नॉट ईटिंग, विच इज वेरी इजी, वेरी डूएबल, वेरी सिंपल। क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सुपर। नंबर 5 is sleeping on time. You understand? Sleep is very important for good health. हम आपको बता रहे लास्ट 11 साल में हम इतने जन को देखे हैं जिनकी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, किडनी प्रॉब्लम, ये सब ठीक होते हुए, और उन सब ने उनकी हैबिट्स और लाइफस्टाइल ही बेटर की है। सो 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ आप सभी याद रखेंगे। 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, अगर ये 5 चीज पे आप ध्यान देंगे तो आप 60, 70, 80 साल तक एकदम फिट रहेंगे। नंबर 1 इज फूड एंड न्यूट्रिशन। नंबर 2 इज फिजिकली बीइंग एक्टिव। नंबर 3 is good quality sleep. Sleep is very important for good health. You understand? In fact, as I'm talking right now, हम सब के बॉडी में there are cancer cells, but हमारा immunity, हमारा immune system वो cancer cell को मारता है, and majority of killing this cancer cell happens in the first half of the night if you are sleeping. You understand? If you're busy eating or watching Netflix, so that healing and cleaning slows down. You understand? So sleep on time, quality sleep is very important for good health. So number 1, 5 pillars of good health. Number 1, food and nutrition. Number 2, physically being active. Number 3 is good sleep. Number 4 is good lifestyle. You understand? हुक्का नहीं करना, ड्रिंक ज़्यादा नहीं करना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना is a good lifestyle. And number 5 is emotions, mastering our thought and emotion. अगर हम ये 5 चीज़ का ध्यान देंगे तो 50, 60, 70 साल में we can be fit, fine, healthy. Yes or no? एंड एक्चुअली अगर आप लास्ट 20-30 साल में देखोगे ना तो ये 5 चीज़ बहुत गड़बड़ है। यस और नो? हम लोग छोटे थे तब कितना जोमेटो, स्विगी, प्रोसेस फूड कितना होता था। यू अंडरस्टैंड? हुक्का कितना होता था। यू अंडरस्टैंड? टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। सो इफ़ यू सी ये 5 चीज़, खाना पीना, फिजिकली बीइंग एक्टिव, स्लीप, लाइफस्टाइल एंड इमोशंस, ये 5 चीज़ लास्ट 20-30 साल में बहुत गड़बड़ हुआ है। और लास्ट 20-30 साल में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, गट प्रॉब्लम, पीसीओडी, थायराइड, कैंसर, ये सब कितना बढ़ रहा है। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर नॉट लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, दे आर लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। सो अगर हम लाइफ स्टाइल, खाना पीना, थॉट, इमोशन, स्लीप अच्छा करेंगे तो ये सब बेटर होना चाहिए। येस और नो? यू अंडरस्टैंड? सो वेरी क्विकली कैन यू रिवाइज व्हाट आर द पॉइंट्स? माइक, कैन आई हैव माइक प्लीज? एक्सक्यूज मी, माइक, बताइए क्या क्या बोले। नंबर 1, नो 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 नो, हाँ, सैलेड बिफोर डिनर एंड लंच। उसके बाद 3rd ड्रम स्टेक। फिर नंबर 4 इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेरी नाइस। नंबर 5 स्लीपिंग ऑन टाइम। यू अंडरस्टैंड? कितने जन को हैबिट है सोने के पहले फोन में बैठे रहेंगे? यस और नो? यू अंडरस्टैंड? सो कैन यू ट्राई एंड अवॉइड? यू अंडरस्टैंड कि भाई 10 साढ़े 10 के बाद हमको स्क्रीन नहीं देखने का है। आप बातें करो, लूडो खेलो, मेडिटेशन करो, आपको जो बुक पढ़ो, जो करना है करो, बट सिटिंग ऑन दैट स्क्रीन नॉट गुड फॉर ब्रेन सेल। यस और नो? नॉट गुड फॉर हॉर्मोन्स। सो प्लीज स्लीप ऑन टाइम एंड हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप। कितने पॉइंट हुए? 5 हुए ना? क्या सॉन्ग बोले? 7 हुए? नहीं, उसको छोड़ो। सो स्लीप वॉज नंबर 5, करेक्ट? स्लीप वॉज नंबर 5, वेरी नाइस। नंबर 6 हमारे इमोशन में, रुकिए। नंबर 6
सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू नो, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 6 is loving yourself. Very very important. You understand? And I'll tell you why it is very important. You know, this is a real story. आप लोग भी घर में कर सकते हैं. I knew the science behind it, but ये खुद हम अपने घर में भी किए हैं. 1.5-2 साल पहले. I have a daughter who is 8-year-old. So आज से 1-1.5 साल पहले आप समझिए, she must be 6.5-7. So हम लोग ने 3 कंटेनर, कांच के 3 कंटेनर हम लोग ने लिए. ध्यान से सुनना, कांच के 3 कंटेनर हमने लिए और उसमें हमने पानी भरा और तीनों कंटेनर में हमने राइस, कुक्ड राइस हमने इसमें डाला. क्लियर? सो 3 कांच के कंटेनर, तीनों में पानी भरा है और तीनों में हमने कुक्ड राइस डाला. पहला कंटेनर में हमने आई लव यू लिखा, हार्ट का स्टिकर लगाया, बहुत सारे अच्छे फेसेस डाले और उसको एक कमरे में रख दिया. जो दूसरा कंटेनर है उसमें एंग्री फेस, आई हेट यू, ये सब लिखा और उसको दूसरे रूम में रख दिया. और जो तीसरा कंटेनर है उसको तीसरे रूम में रख दिया, उसमें कुछ लिखा नहीं है, जस्ट इग्नोर. ओके? एंड आई एम टेलिंग यू, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, आई एम टेलिंग यू, 25-27 दिन, 25-27 डेज, उसमें भी 2-3 दिन हम लोग भूल गए होंगे. और दिन में आप समझिए 3 से 4 मिनट, मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 5 मिनट पकड़ के चलिए, दिन में 5 मिनट, 25-27 दिन, उसमें भी 2-3 दिन हम लोग भूल गए होंगे. हम लोग ये 3 कमरे में जाते थे एंड पहला वाला को जाके बोलते थे आई लव यू, तुम कैसे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने खाना खाया ना, इस तरह की बातें करते. दूसरे के पास जाते थे और उसको गाली देते, आई हेट यू, तुम बहुत बकवास हो, तुम ऐसे हो, ऐसे, उस तरीके से. एंड तीसरे वाले के पास हम गए नहीं 25-27 दिन. यू अंडरस्टैंड? एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर 27 डेज? जो पहला वाला कंटेनर था ना, वो क्रिस्टल क्लीन जैसा डे 1 में था. जो दूसरा कंटेनर था ना, उसके ऊपर का जो पैच जहाँ पे पानी खत्म हो रहा है, उस पैच पे एकदम काला सा एक पैच बन गया एंड पूरा देख के लग रहा है कि पूरा सड़ गया. अंडरस्टैंड? एंड जो तीसरा वाला था जिसके पास हम गए नहीं, उसके ऊपर एक थिन लेयर बन गया था एंड हल्का देख के समझ में आ रहा था थोड़ा सड़ गया है. यू नो व्हाई दिस हैपेंड? यू नो व्हाई? वाटर हैज मेमोरी. क्या बोला मैंने? सॉरी? वाटर हैज मेमोरी. 80% इन आवर बॉडी इज वाटर. तो सुबह हम उठते हैं एंड रात को सोने जाते हैं, पूरे दिन आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू अंडरस्टैंड? दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरा आपके बारे में क्या बोलता है, नॉट इंपॉर्टेंट. आप अपने दिमाग में कितना खिचड़ी पकाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो लविंग योरसेल्फ is very very important because each and every cell in your body is listening to your emotions. Are you understanding what I am saying? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? You understand? Non-negotiable. You understand? Number 7 is living in gratitude, living in joy. आपका पहला काम है आनंद में रहना. You understand? Unknowingly हम क्या करते हैं? Unknowingly we give our remote control to some person, some situation outside of us. कुछ अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा, कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा तो बुरा लगेगा. That is not a good way to live life. Yes or no? You understand what I'm saying? So now आप बोल सकते हैं कि सर हम तो इंसान है, कुछ गड़बड़ होगा, बुरा तो लग ही सकता है. Of course बुरा लग सकता है. But my question is how long you want to live like that? You know, राम की पूजा सब करते हैं, correct? But राम जैसा लाइफ किसी को नहीं चाहिए. बचपन में पढ़ाई कर रहा है तो असुरों से फाइटिंग कर रहा है, शादी हुआ तो वनवास भेज दिया, और रावण सीता को लेके चला गया, वापस आया तो गाँव वालों को सुन के वापस वाइफ को भेज दिया, बच्चा पैदा हुआ तो वाइफ जंगल में. किसको ऐसा लाइफ चाहिए? आपका लाइफ उससे बहुत बेटर है. यू अंडरस्टैंड? बट स्टिल द रीजन व्हाई वी वर्शिप हिम इज बिकॉज उनकी लाइफ में जो भी हुआ, उन्होंने उनका इनसाइट को डिस्टर्ब नहीं होने दिया. उन्होंने ऐसा नहीं बोला अरे पापा हमने वचन दे दिया, एक बार पूछा भी नहीं, एक बार मैसेज तो कर देते. नो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दूसरा क्या करे, दूसरा क्या बोले, आपके हाथ में नहीं है. योर ओनली जॉब इज टू मास्टर योर इनसाइड. द वे यू थिंक एंड द वे यू फील शुड बी इन योर हैंड्स. यस और नो? एब्सोल्युटली क्लियर? नॉट क्लियर? सो लेट्स रिकैप. बोलिए फटाफट. नंबर 1, 2 to 3 fruits in a day. नंबर 2, नंबर 3, लंच डिनर के पहले ड्रम स्टिक खाने का है. नंबर 4, 12 घंटा, वेरी इजी, वेरी डूएबल. नंबर 5, good quality sleep. Number 6, number 7, living in joy, living in gratitude. Yes or no? Clear? कर सकते हैं? Now, you know, number
8, correct? Very important. Being more in the present moment. क्या बोला मैंने आपको? Being more in the present moment, very important. You understand? हाँ, ओके, स्टोरी सुनाते हैं. लायन समझते हैं आप? लायन, जब लायन डियर के पीछे भागता है ना, डियर इज इन हाई स्ट्रेस. यस और नो? यस और नो? ऑफ कोर्स पीछे लायन है, वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, बट जैसे वो लायन चला जाता है, डियर इज सेफ. वो प्रेजेंट मोमेंट में घास खाता है. वो ये नहीं सोचता है कल लायन कितने बजे आएगा, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे भागेंगे कैसे बचेंगे, या वो ये नहीं सोचता है कि रोज मेरे पीछे क्यों भाग रहा है और 10 डियर है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. नो, वो चाहे तो भी नहीं सोच सकता है. आप सोचेंगे हमको ऐसे पता, हमको पता है. यू अंडरस्टैंड? बट ह्यूमन बीइंग, because of the large thinking brain, which is the neocortex or the frontal lobe, जो खाली human being का है, we can plan, think about the future, we can anticipate, we can revisit the memories of the past. It is a gift to human being, but we are using this gift to our disadvantage and not to our advantage by overthinking, worrying about the problem. ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो what if this happen, what if that happen. And when we do that, हम हमारे नर्वस सिस्टम और बॉडी को मैसेज भेजते हैं कि हमारे पीछे 24 घंटा लायन भाग रहा है. There is no lion. You understand? But we keep living in those hormones of stress when we live in fear, guilt, worrying, unworthiness, lack. And when we do that, our gut slows down, our immune system slows down, our heartbeat goes fast, and we invite more disease. Are you understanding what I'm saying? You cannot, no matter आप कितने भी ड्रमस्टिक खाओ, अगर आपका नर्वस सिस्टम is not regulated, you will never heal fast. समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? It's too much or are you understanding? Yeah? Feeling sleepy? Let's try. Let's try. I want all of you to please stand. Please stand, all of you. And I want you to take chair. आपके पीछे chair रखेंगे. You understand? आपके पीछे chair रखेंगे. And आप chair के आगे खड़े रहेंगे. And everybody should have a partner in front of you. Please इधर आइए. So yeah, everybody should have a partner. अब इधर आइए, खड़े रहिए. अब इधर आइए. So जैसे ये लोग दोनों कैसे खड़े हैं, ऐसे आप लोग दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे और सामने खड़े रहेंगे. और आपके पीछे चेयर होगा. प्लीज स्टैंड हियर. वेरी नाइस. एवरीबडी टू स्टैंड लाइक दिस. आपके पीछे चेयर होना चाहिए. आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज. बोथ ऑफ यू सिट देयर सो दैट आई कैन सी बोथ ऑफ यू. एवरीबडी, आपके पीछे चेयर होना चाहिए ना. आप लोग दोनों, आप लोग के पीछे एक चेयर रखेंगे एंड आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे जैसे ये लोग दोनों खड़े हैं. सानिया, कैन यू प्लीज चेक एवरीबडी हैज अ चेयर बिहाइंड एंड दे आर स्टैंडिंग प्रॉपर्ली. Everybody should have a partner. आपके पीछे चेयर होना चाहिए. Everybody should have a partner and आपके पीछे चेयर होना चाहिए. Ready? Everybody? Come on, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. Everybody should have a chair पीछे and everybody should have a partner in front. Clear? Very nice. Everybody ready? Who doesn't have a partner? Anyone? Okay, Sania, can you be her partner? इनके पास कोई नहीं होगा, इनके पास आ जाइए. Everybody is a partner? Yes. Everybody has a chair behind themselves? Yes. Very nice. सुनिए. So अभी हम 1 बोलेंगे ना, तो आप लोग को ऐसे क्लैप करना है. Can you all clap once? 1. साथ में. Okay, ready? 1. एक बार फिर से साथ में. 1. Very good. When I say 2, आपको चेयर में बैठना है और वापस खड़े होना है. Okay? सो प्लीज देख लीजिएगा पीछे चेयर होना चाहिए. ओके, सो व्हेन आई से 2, आप चेयर में बैठेंगे और वापस खड़े होंगे. कैन यू डू दैट? चलिए. 2. खड़े भी होना है, खड़े भी होना है. फिजिकली बीइंग एक्टिव इज इंपॉर्टेंट. यू अंडरस्टैंड? सो अंडरस्टूड. 1, 2. वेरी नाइस. गुड. एंड व्हेन आई से 3, आप लोग थोड़ा जंप करेंगे. पीपल हु कांट जंप, आप थोड़ा ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं. यू अंडरस्टैंड? नाउ प्लीज शो मी दिस टुगेदर. 1, 2, 3. वेरी नाइस. इजी. अभी आप बस मेरा आवाज सुनेंगे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन. क्लियर? चलिए. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1. You are just laughing, you are doing nothing, just laughing there. Please follow the instruction. एक बार और करते हैं एकदम ध्यान से. ओके, चलिए. एवरीबडी पे अटेंशन. लेट्स बिगिन.
1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 2. Thank you so much. Please come back to your seats. All right, so number 9, correct? Number 9, right? We were till 8, na? Very nice. Who said 8? 8 or 9? 9. अब रिपीट करिए स्टार्टिंग से. बोलिए बोलिए, आई एम विथ यू. रिपीट करिए. नंबर 1. टू टू 3 fruits in a day. हाँ. फिर ड्रमस्टिक. नंबर 4. अब देख के बोल सकते हैं, आपको लर्न नहीं करना है. हाँ. स्लीप ऑन टाइम. या मोर इन द नाउ. लायन डियर का स्टोरी याद रखने का. क्लियर एवरीबडी? यस. नाउ वी गो टू नंबर. वेरी नाइस. Number 9, very important, and I have seen so many people healing when they practice this in their meditations very nicely. Number 9 is forgiveness. एकदम ध्यान से समझो. Super important. You understand? हमको 0% इंटरेस्ट है दूसरों ने क्या किया है. अगर आपको लाइफ अच्छा बनाने का है, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. यस और नो? यू अंडरस्टैंड? एंड यू नो, जब कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, अगर आप वहां खड़े होते तो आप क्या सोचते? क्या सोचते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, दशरथ रो रहा है, सीता रो रही है, अच्छा नहीं कर रही है, नॉट नाइस. यस और नो? यस और नो? बट इफ यू लुक फ्रॉम हायर अवेयरनेस, हायर कॉन्शियसनेस, आपको समझ में आएगा कि बॉस राम ने तो जन्म ही लिया था रावण को मारने के लिए. तो अगर वो वनवास नहीं जाता तो रावण को कैसे मारता? तो राम को तो कैकेयी को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके वजह से वनवास जा रहा है. यस और नो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत परेशान करता है, आपके घर में हो, आपके बाहर हो, जहाँ भी हो, ओके, जो आपको बहुत परेशान करता है, बहुत इरिटेट करता है, आपको उसको देख के बहुत गुस्सा आता है, उसका नाम ही आता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, एंड आपके बहुत सारे ग्रजेस आपने पकड़ के रखे उनके तरफ, यू नो, एंड उसने आपके साथ ये किया, उसके साथ वो किया. यस और नो? हो ही सकता है, बट आपको नहीं पता कि पिछले जन्म में आपने उनको कितना चाटा मारा है. यू डोंट हैव टू नो. यू अंडरस्टैंड? योर ओनली जॉब इज टू लव एवरीवन एंड टू फॉरगिव एवरीवन. प्लीज अंडरस्टैंड. यू नो, हम पत्थर में लिख के आपको देते हैं दैट डिवाइन इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज विद इन यू. You understand? And if divine lives in each and every one of you, why will you hate anyone? You will only hate anyone if you don't know the truth reality of life. Yes or no? You understand? It is just one that has become many. Yes or no? You understand? But it is our ego consciousness जो हम सोचते रहते हैं कि हम यही है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, and all of that. You understand? But if you look from higher awareness, higher consciousness, and हम meditation में इतना लोगों को ये सब सिखाते हैं that, and if you truly start practicing that, your body heals so much. We have this lady Aarti Basani, you understand? Calcutta based, Salt Lake में रहती है आरती बसानी. She 7-8 महीना हो गया, she is learning meditation and she is doing lot of things with us. And उसको ना psoriasis बोल के एक प्रॉब्लम होता है, you understand? Skin problem. So there is something known as acne, acne के ऊपर आता है eczema, eczema के ऊपर आता है psoriasis. तो हमने खाना पीने के लिए तो उसको बताया, बट वो बहुत अच्छा मेडिटेशन करती है. You understand? And you know what is here? 4th center, इसको हार्ट सेंटर बोलते हैं. You understand? So number 1, 2, 3 सेंटर्स नीचे, number 4 and number 8 ऊपर. So हमारे जो चक्रास या जो एनी सेंटर बोलते हैं, number 4th सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो मेनी पीपल व्हेन आई मीट देम, इनिशियली उनका ये सेंटर बहुत बंद रहता है, बट व्हेन दे प्रैक्टिस जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, व्हेन दे फॉरगिव, व्हेन दे लव देमसेल्व्स, उनका ये सेंटर खुलने लगता है. एंड द मोर योर हार्ट सेंटर ओपन्स, you create more health in your body. You understand?
एंड उसका 99% सोराइसिस गायब. अंडरस्टैंड? एंड शी कीप्स टेलिंग मी दिस कि सर हम मेडिटेशन में इतने जन को फॉरगिव करते हैं. एंड वो मेरे को बोलती है कि सर हमको तो बहुत बार स्ट्राइक करता है कि जिसका हम ग्रजेस पकड़ के रखे थे उसमें से आधे जन तो मर चुके हैं, अभी भी हम उसका पकड़ के रखे हैं. यू जस्ट इमेजिन, अगर हम ये अभी 1 घंटा उठाएंगे तो हमको यहाँ हल्का सा दर्द होगा, यस और नो? अगर हम 6 घंटा ऐसे उठाएंगे तो हमको थोड़ा और दर्द होगा. अगर हम 24 घंटा ऐसे उठाएंगे तो हमको ज़्यादा दर्द होगा. बट अगर हम इसको नीचे रखेंगे तो और किसी को नहीं, हमको आराम मिलेगा, यस और नो? यू अंडरस्टैंड? एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन सो मेनी पीपल एक्सपीरियंसिंग दिस. द मोर यू फॉरगिव एंड द मोर यू लव योरसेल्फ, you are happy. Forget about others, you are happy. You understand? And when I say forgive everyone, that doesn't mean कि आप कल जाके उनको गले मिलो. No, I'm not saying that. I am saying कि आपका thought emotion किसी पे भी dependent नहीं होना चाहिए. That is real power. That आपको सुबह से लेकर रात तक आपको आनंद में ही रहने का है. वही आपका स्वरूप है. कोई भी 3, 4, 5 साल का बच्चा होता है ना, वो आनंद में जीता है, प्रेम में जीता है, ग्रेटिट्यूड में रहता है. यस और नो? हम सब वैसे ही थे. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, experiences in life start shaping us and we start comparing, judging, anger, guilt, regret, fear, उसमें जीते हैं. And in that journey we forget to love ourselves. You understand what I'm saying? So आपका जो innate nature है, that is true love, joy, happiness, and आपको वैसे ही बनने का है. Anything that is not love in us must die. क्या बोला मैंने आपको? Anything that is not love in us, no guilt, no anger, no fear, no unworthiness, no lack, it has to die for you to evolve. You understand what I'm saying? Make sense? Yes? Very nice. And number 10 is at least we can try दिन में 5-6 हज़ार step walk करें. Can we try that? हाँ, पूरे दिन बैठे रहना, फोन में देखते रहना, not a good idea. You understand? So सुबह शाम जब हो सके 5 to 6,000 steps in a day, very very important. You understand? Which helps our hormones, our gut, our immunity. So ये 10 चीज़ों मैंने आपको बताया very quickly. हाँ, 2 to 3 fruits in a day, lunch dinner के पहले सैलेड खाने का है, ड्रमस्टिक रोज दिन में खाना है. फिर नंबर 4 was sleeping on time. नंबर 5 intermittent fasting 12 घंटा करना है, लेट डिनर नहीं करना है. Number 6 was loving yourself. Number 7 was being more living in joy, gratitude. Number 8 was being more in the present, that lion deer story. Number 9 was forgiving. You understand? No matter what others have done, your job is to be in love, be in gratitude, be in joy. You understand? You cannot hold on to grudges. You cannot keep thinking about it, them complaining and cribbing and giving them, gali and all of that. You can't do that. You understand? And number 10 is physically being active. ये 10 चीज़ जो मैंने आपको बताया, क्या ये करने में बहुत प्रॉब्लम है? कर सकते हैं, नो रॉकेट साइंस, इजी. यू अंडरस्टैंड? बट अगर हम बता रहे हैं, एंड अगर ये 10 चीज़ अगर आप करेंगे रिलीजियसली, यू अंडरस्टैंड, ईट मोर प्लांट बेस्ड, ईट मोर नेचुरल, अवॉइड पैकेट फूड, तला हुआ, प्रोसेस, ऑल ऑफ दैट, वंस वाइल ओके. अगर आप ये 10 चीज़ करेंगे तो 1 महीना 2 महीने बाद आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस बेटर होगा या फिर किसी और का बेटर होगा? प्लीज एक्सप्लेन. यू अंडरस्टैंड? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यू अंडरस्टैंड? So thank you so much for listening. Thank you so much for paying attention. Thank you so much for understanding. Before I just go, one last thing. All I want you to do is apply these 10 things. All I want you to do is to love yourself. All I want you to do is be happy and just enjoy. You understand? Thank you so much. Please take care. Thank you so much. Thank you, sir. That was truly inspiring and few of the very simplest things which we can follow in our daily life. I would call CA Anita Agarwal ji for a vote of thanks. नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में. और नारी पीयूष स्रोत से तभी बह सकती है जब वह स्वस्थ हो. स्वस्थ रहने के जो टिप्स हमने डॉक्टर करण कंकर से अभी सीखे, बहुत ही अच्छे इजी वे में उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया. हमने अभी तक सुना था जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, जैसे पिए पानी वैसी रहे वाणी. But the way you explained was so simple and easy.
On behalf of the EIRC of ICI, I extend my heartfelt thanks to Mr. Karan Kankar for this insightful session on secret to living healthy and disease-free. Secrets are no more secrets now. We are grateful for your time and for sharing such valuable knowledge with us today. Thank you once again for being a part of this celebration. Thank you.